Om Shanti. ओम शांति। Welcome all to the Values for Life series. आप सभी का स्वागत है वैल्यूज़ ऑफ लाइफ Spend सीरीज़ 1 minute में। of silence, remembering the Supreme सबसे Teacher, पहले giving 1 मिनट thanks for हम giving us परमपिता successful परमात्मा को exercise. याद करने के लिए So let's take लगाते 1 हैं। minute of silence. सो जस्ट 1 मिनट। So, welcome once again. आप At सभी the का outset, let स्वागत me है। thank immensely Sister Claudia from Vancouver for सिस्टर providing the क्लोडिया space. को मेरा बहुत So, बहुत therefore, धन्यवाद कि the जिन्होंने entire हमें Vancouver यूं family पर ये thanks for प्रोग्राम her, and करने also to के Dr. Ashok लिए Mehta, who's the national इजाज़त दी। coordinator of the Vihasa program. Thanks for allowing him us to use the Vihasa portal to हमें ये carry on this. विहासा पोर्टल और So ज़ूम let me just यूज़ welcome करने के लिए देने के लिए बहुत बहुत ask आपका Prabha sister धन्यवाद। to प्रभा who's सिस्टर से मैं a कहना bank चाहता manager from हूँ कि Delhi, जो कि ask her to एक please बैंक मैनेजर है present दिल्ली a bouquet में, of flowers and welcome Usha प्लीज़ Didi. Over to ये you, Sister Claudia. फ्लावर्स प्रभा को दें। Om Shanti Didi, a very heartiest, ओम शांति उषा दीदी। loveful welcome to our program. Thank आप you. आपका हार्दिक स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। Thank you, Prabha sister. प्रभा So, सिस्टर as आपका all of you know, धन्यवाद। that it's Guru Nanak जैसे Jayanti आप सभी को world पता कि celebrated worldwide, कल and you know Guru गुरु Nanak नानक was देव an जयंती है। epitome of गुरु sacrifice नानक and देव जी renunciation. तो I त्याग still की मूरत distinctly हैं। remember his मेरे को एक story. कहानी याद Once he आती was at है the कि Modi Khana, which is जब the एक place बार where वो मोदी खाना he में was. थे It जहाँ was a पे shop of the father where he लोग was asking सामान sense लेने of आते things, थे and he was counting a few और वो coins. वहाँ पे कुछ देते थे। So एक the दिन वो कुछ tera, when it सिक्के reached काउंट tera, कर रहे we थे। call it tera, 11, जब 12, वो 13, 13 पे he got पहुँचे stuck over तो there, and when he 12 was just 13 पे trying to जब come पहुँचे तो back, वो वहाँ पे रुक गए, so क्योंकि secretly बस was वो repeating उनके मन में तो this यही था कि बस 13 renunciation 13 and 13 was 13। वो तो giving बस counts to वही other people सोचने without लगे। even charging him. अम, So that shows how Guru Nanak was, and we can all relate गुरु to that नानक देव story. जी तो So without त्याग की taking much मूरत थे of your जो time, लोगों को देते I would देते now और want देते to ही गए। invite मैं Usha Didi, आपका and और before समय I नहीं do that, लूँगा कि मैं I उषा would like दीदी to को just tell you a bit about her. I'm sure इनवाइट Usha करना Didi is चाहता known हूँ to कि all of you, उषा but we दीदी have new को तो सभी participants in the जानते हैं, audience, so I would लेकिन briefly कुछ introduce नए her. लोग होंगे तो She मैं was born in Africa in ब्रीफली 1970, and she came into उषा contact दीदी with को Brahma Kumaris in इंट्रोड्यूस करना चाहता 1974, हूँ। and she ये dedicated her life to Lord Krishna. 1944 At present, she is 1974 at में the ब्रह्मा कुमारीज में आए। headquarters in Mount Abu. She is a ये senior Raja Yoga ये meditation ग्लोबल teacher. हेडक्वार्टर्स ऑफ She ब्रह्मा also is a कुमारीज management माउंट आबू trainer, में रहते हैं। ये spiritual counselor, मैनेजमेंट ट्रेनर भी हैं and और she has authored 2 books आध्यात्मिक one of which काउंसलर is भी हैं। self-management, इन्होंने कुछ and बुक्स towards भी लिखी हैं spirituality in जिससे Hindi, सेल्फ like Adhyatmika. मैनेजमेंट, These 2 आध्यात्मिकता bestsellers. पे भी कुछ इन्होंने She is बुक्स also लिखी very हैं जो well known for the बहुत ही 1985 United पॉपुलर Nations हैं। International Year, which was the Bharat Unity Youth March year, where she took active participation in the same. She also is done a lot of presentations in the corporate इन्होंने बहुत ही industries, corporate बिजनेस organizations. प्रेजेंटेशन भी She दी has been हैं। awarded and honored with many awards, publicly इनको बहुत festivals, ही अवार्ड भी मिले all हुए of हैं, which लेकिन award मैं which was awarded by the Public उन Relations Council of India in 2012. पब्लिक Recently, रिलेशन काउंसिल से she भी was इनको बहुत invited by the अवार्ड मिले Thailand हैं। government to the इनको Moral Award थाईलैंड in 2019. गवर्नमेंट में भी इनवाइट किया Also, the है और prestigious award of इनको World मॉरल Enlightenment अवार्ड दिया Center, है। which was in Los Angeles. The award लॉस was एंजलिस में for भी इनको बहुत ही Symposium प्रेस्टिजियस अवार्ड्स for it मिले was the हैं। Global Order of Dignitaries, which was given by the Princes of Philippines. And all of us know प्रिंसेस ऑफ how फिलीपींस ने भी humanity इनको gets influenced आध्यात्मिकता by पे काफ़ी spirituality अवार्ड दिए in हुए modern हैं। practice. You know, she's also very well known for Ramayana and Mahabharata, because these उषा were दीदी books रामायण और followed widely महाभारत in India, पर and how भी she बहुत ज्ञान देती takes हैं all और those and gives them a इससे वो spiritual touch. बहुत ही Just what is the पॉपुलर हैं। spiritual significance of Gita? What is the spiritual significance of ये Ramayana? स्पिरिचुअल So with ये this brief आध्यात्मिक introduction, रहस्य गीता I और would like to give रामायण it का to her, बहुत and ही अच्छे also से one more thing for the समझाती हैं। participants who are
और इसके लिए बहुत ही जानी मानी हैं। ask questions, but that will only happen. You can type it in the chat अगर box आपके after कोई भी the प्रश्न उत्तर हैं तो आप वो चैट में डाल सकते हैं। जब उषा दीदी का क्लास ख़त्म हो जाएगा तो हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। अभी मैं उषा दीदी को इनवाइट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ वो त्याग और फिर बोले। आप सभी का मेरा अधिक धन्यवाद है जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। मनोज भाई, ये तो मेरे लिए बहुत ही धन्य सौभाग्य है कि मैं त्याग और वैराग्य पे बोलूँगी आज। जैसे कल की गुरु नानक देव जयंती है जो कि प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। ये त्यौहार सिख कम्युनिटीज़ बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। ये तो बहुत ही एक बड़ा उत्साहपूर्वक फेस्टिवल है हमारे लिए। मुझे एक गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में भी बुलाया गया था कि गुरु नानक देव जी पर बोलने के लिए। दलाई लामा और भी बहुत आध्यात्मिक लेक्चर वहाँ पे उपस्थित थे जो कि इस आध्यात्मिक फेस्टिवल का उत्साह देने के लिए वहाँ पहुँचे थे। ये सिख कम्युनिटी ने तो बहुत ही त्याग किए हैं, सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं लेकिन हिंदू कम्युनिटी और भी बहुत कम्युनिटीज़ के लिए सिख कम्युनिटी ने बहुत ही त्याग किए हैं। जब भी मैं गुरु नानक देव जी के बारे में बोलना चाहती हूँ तो उनकी त्याग की मूर्त मेरे आगे आती है, जिन्होंने संसार के लिए बहुत ही त्याग दिए हैं। उन्होंने बहुत ही त्याग दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा त्याग उन्होंने दिया है कि जब उनके गुरु दिए हैं, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी के भी ने भी बहुत दिया है। मेरे को वो कहानी याद आती है कि जब उनके 2 बच्चों को कहा गया था कि उनको इस्लाम रिलीजन को अपनाना है, लेकिन जब उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए मना कर दिया तो उन्होंने कहा कि अगर आप इसको नहीं इस्लाम इस रिलीजन को नहीं मानोगे तो हम तुम्हें दीवारों में चिना देंगे। दोनों बच्चों ने बहुत ही दृढ़ संकल्प से साथ ये कहा कि हमें दीवारों में चिना दो, लेकिन हम अपने धर्म का त्याग नहीं करेंगे। त्याग और सैक्रिफाइस और रिनंसिएशन में क्या अंतर है? सैक्रिफाइस और त्याग वो है जब आदमी कुछ भी त्याग करने के लिए अपना सोचे नहीं, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए अपने त्याग करने के लिए कुछ सोचे नहीं। ये हम अपने शरीर, ये मतलब त्याग अपने शरीर के लिए सोच सकते हैं, लेकिन जब रिनंसिएशन की बात है तो वो बहुत ही बारीकी में है। जब भगवान शिव यहाँ पर इस दुनिया में आए, उन्होंने भी ये त्याग मूर्त की अग्नि प्रज्वलित की। त्याग तन मन धन का ये त्याग करने को कहा। ब्रह्मा बाबा ने भी ये अपनी पूरी जिंदगी अपनी तन मन धन इस त्याग की ज्वाला में प्रज्वलित कर दिया। ये संसार के लिए ब्रह्मा बाबा ने अपना तन मन धन त्याग दिया।
एक नए संसार की उपासना के लिए ब्रह्मा बाबा ने अपना सारा कुछ त्याग दिया। जो ब्रह्मा बाबा ने त्याग किया वो और किसी ने नहीं किया हमें, इसलिए हम सभी उन्हीं ब्रह्मा बाबा के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हैं। मातेश्वरी ने भी अपना तन मन धन इस सैक्रिफिशियल अग्नि को दे दिया और हमारी दादीस ने भी वही स्टेप फॉलो किए। ये सैक्रिफाइस था, ये त्याग था, इसी से ये स्पिरिचुअल विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, इस त्याग की तपस्या के आधार पर। ब्रह्मा बाबा also and शिव बाबा tells us, हमें कहते हैं कि हम भी त्याग की मूर्त बने, लेकिन वो त्याग की मूर्त क्या है? ये तो बहुत ही समय से कहा जाता है कि तुम जितना त्याग करोगे तो उतना ही तुम्हारा भाग्य बढ़ता जाएगा। जैसे कि कहा जाता है कि जितना तुम दोगे उतना ही तुम्हें मिलेगा। ऐसे कहा जाता है कि जितना जैसे तुम कर्म करोगे उसी कर्म से तुम्हें फल की प्राप्ति होगी। इसलिए हमें देखना चाहिए कि ये हमारा कर्म है या फिर हमारा त्याग है जिससे हमें भाग्य मिलेगा। तो ये इस पे विचार करना बहुत ही जरूरी है कि ये हमें फल का ये त्याग करने और जब फिर कर्म करने पे हमें विश्व का फल मिलता है। जब हम त्याग कर देते हैं, जहाँ हम कुछ त्याग कर देते हैं, लेकिन अगर हमारे मन में ये फीलिंग है, ये हमारे मन में फीलिंग है कि मैंने कुछ किया है, कि मैं और मेरा, जब हमें ये हमारे दिमाग में रहता है कि मैंने दिया है ना, तब जब कोई भी हम कर्म भी करते हैं, जब ये मैं और मेरा रहता है ना, तब सारा कुछ खराब हो जाता है। क्योंकि जब अगर ये फीलिंग ना रहे, ये भान ना रहे कि मैंने किया, मेरा है, वही सबसे सच्चा त्याग है। तभी हमारा सबसे अच्छा भाग्य, सबसे बड़ा भाग्य बनेगा। सब ये मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी जब हमें ये भान ना रहेगा कि मैंने किया और मेरा है। और लोगों के लिए तो, आम लोगों के लिए तो त्याग करना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सभी नहीं त्याग, इतना बड़ा बड़ा त्याग कर सकते। तो भगवान ने और एक साधन रखा है कि कर्म करके भी तुम अपना भाग्य बना सकते हो। लेकिन वो कर्म भी अगर तुम इस ध्यान से करो कि ये ना मेरा, ना मैं, ना मेरा, ये भान ना रहे कि मैं करता हूँ, तभी ये सबसे अच्छा भाग्य बनता है। तभी हम सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं। तभी हम सबसे अच्छा अपना भाग्य बना सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि बाबा ने हमें ये कोर्स दिया। ये कोर्स किस पे दिया? त्याग पे दिया। मैं और भी सोच रही थी कि इस संसार में भी बहुत हैं जिन्होंने ये त्याग किए हैं, और भी बहुत सन्यासी हैं जिन्होंने बहुत त्याग किए हैं, लेकिन उनके त्याग ये स्थूल त्याग हैं, ये फिजिकल त्याग हैं। लेकिन जो ब्रह्मा बाबा ने त्याग किया है वो त्याग
अपने त्याग के लिए, शारीरिक त्याग के लिए नहीं, लेकिन इस संसार के त्याग के लिए क्या है। महात्मा बुद्ध भी बहुत बड़े त्यागी थे। His father thought he should not be shown of any of the evil things in the society or in the kingdom because गौतम बुद्ध के पिता ने ये बहुत ही अभ्यास किया कि गौतम बुद्ध को कोई भी बाहर के बुरे प्रभावों का कोई असर ना हो, वो उनसे दूर रहें, ताकि उनको लगता था अगर उन्होंने दुख देख लिया तो वो ये सब कुछ त्याग देंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने, वो समय आया जब उन्होंने सब त्याग दिया। जब हमें सारा कुछ, उनके पास सारा कुछ था, उनके पास महल थे, सारा कुछ था, लेकिन फिर भी उन्होंने त्याग कर दिया। त्याग करने के बाद वो बने गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध। he renounced everything. सारा कुछ होने के बाद भी त्याग कर दिया, सारे महल, सारा कुछ धन संपत्ति होने के बाद त्याग किया। वही महान त्याग है। उन्होंने अपना सारा समय, अपने कर्म, अपना शरीर, अपने ऑर्गन्स, अपनी इंद्रियां, सारा कुछ इस संसार के परिवर्तन और Takes us into the depth अच्छे के लिए लगा दिया। of real renunciations. हमें शिव बाबा भी यही समझाते हैं कि सबसे बड़ा त्याग क्या है। वो हमें इसी पर कोर्स देते हैं। The various levels of renunciations. And in that, the first वो हमें अलग अलग तरह के त्याग समझाते हैं। that means to let शिव बाबा कहते हैं कि जब एक आदमी त्याग करता है किसी सिचुएशन में, वो सबसे पहला तो यही है कि वो मेरा और मैं और मेरा क्या त्याग। सबसे पहला तो यही है कि मैं और मेरा का भान, इसका त्याग। सो सबसे बड़ी बात यही है कि ये भान, ये मेरा शरीर, इसका भान कैसे जाए। melt that ego completely. सबसे बड़ी बात, इसका मतलब तो यही है कि ये कॉन्शियसनेस, ये अहंकार, ये मेरी बॉडी का अहंकार, मेरी बॉडी का भान, ये कैसे ख़त्म हो जाए, ये कैसे मेल्ट हो जाए। Physical body, not even in the thoughts. ये मेरे विचारों में भी ना आए कि मेरी ये बॉडी है, ये मेरा है। यही सबसे बड़ा त्याग है। Senses, physical senses, जब मेरी इंद्रियां मेरे को ना खींचेंगी, ये मेरी फिजिकल इंद्रियां मुझे ना खींचेंगी, वही स्टेज है जो शिव बाबा हमें कह रहे हैं। ये सबसे पहला स्टेप है, ये सबसे पहला कदम है कि मेरे को इस देह का भान कि मैं हूँ और मेरा है। सबसे पहला ये त्याग है कि जो मुझे करना है। ये पहला कदम है इस त्याग की यात्रा में। दूसरा कदम है कि मुझे ये देखना है कि मैं कैसे त्याग करूं उन चीज़ों का जो इस शरीर से जुड़ी हुई हैं। but once we have done that, लेकिन सबसे पहले तो हमने ये त्याग कर दिया कि ये मेरा शरीर है, ये मैं शरीर हूँ। लेकिन उसके बाद दूसरा कदम ये है कि उन चीज़ों का त्याग करूँ कि जो इस शरीर से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि senses say ये इंद्रियाँ the mind, मुझे the physical मेरे मन को प्रभावित करती हैं। ये मेरी इंद्रियाँ मुझे छोटी छोटी चीज़ों में लगाती हैं कि जिससे मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि मैं इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल रखना। Baba reminded us of a story. इसलिए इसके ऊपर हमें बाबा एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाते हैं कि जब हम एक के पीछे भागते हैं तो बाकी और चीज़ें हमें
प्रभावित करती हैं कि जब हम एक को पकड़ते हैं तो दूसरा छूट जाता है, दूसरे को पकड़ते हैं तीसरा छूट जाता है, एक आता है, एक मिलता है तो दूसरे का प्रभाव बढ़ जाता है कि मैं दूसरा भी लूँ। Similarly, we try तो to ये इंद्रियां हमें यहाँ वहाँ लगाए रखती हैं, हमें प्रभावित करे रखती हैं। playing games तो कभी हमारे पुराने संस्कार आ जाते हैं, and we come तो इन सभी चीज़ों में हमारा मन लगा ही रहता है, लगा ही रहता है, लगा ही रहता है। तो इससे immediately we are बचने का बस यही की साधन है कि मैं अपने को आत्मा जानूं। तो परमात्मा कहते हैं कि हमें the second इन इंद्रियों जो इस शरीर से जुड़ी हैं उनका भी त्याग कर देना है। अगर तभी हम अपने body देही भान विदेही स्थिति में जा सकते हैं। जो भी मेरे शरीर से जुड़ा है उसका त्याग। वो क्या चीज़ें हैं जो मेरे शरीर से जुड़ी हैं? मेरी इंद्रियां। of the body सबसे पहले ये मेरे को त्याग करना है कि ये मैं हूँ और मेरी बॉडी है। उसके बाद मुझे उन चीज़ों का त्याग करना है कि जो मेरी शरीर से जुड़ी हुई हैं, जो कि मेरी इंद्रियां हैं, मेरी 5 इंद्रियां। and the third step और तीसरा कदम of इस त्याग की यात्रा पे है कि मेरे को that is उन सभी संबंधों का भी त्याग करना है जो इस शरीर से जुड़ी हुई हैं, दोनों लौकिक और अलौकिक। either there is क्योंकि उन संबंधों में क्या होता है कि so despite and हमारा बंधन बना रहता है। ये संबंध ही बंधन बन जाते हैं। so both of them have to be renounced. इसलिए ये संबंध भी लौकिक और अलौकिक दोनों का त्याग भी करना Either है। a person is living in the center or चाहे एक आदमी सेंटर पे रहता है या फिर अपने लौकिक घर में रहता है, लेकिन हम सब जुड़े हुए हैं। चाहे ये लौकिक संबंध हैं या अलौकिक संबंध हैं। अलौकिक संबंध भी जहाँ पर ये हमें भान रहता है कि मैं उसको पसंद नहीं करता, मैं इसको पसंद नहीं करता। ये सारे विचार, ये सारे फीलिंग्स, कुछ ये विचार कुछ प्रभावित भी होते हैं कि हमारे पुराने संस्कारों से। इसलिए हम उन पुराने on the basis of their संस्कारों के कारण लोगों से अटैच हो जाते हैं। इसी के कारण that makes us कभी कभी हमें उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ प्रभावित करती हैं, इससे बंधन बनते हैं। तो इसलिए इसका भी त्याग करना होगा। तो तीसरा कदम त्याग का है कि मेरे इस बॉडी से जो रिलेशन है लोगों का, क्योंकि वो रिलेशन नहीं, वो बंधन है। we either perform elevated actions or wasteful sinful actions. इस जब बॉडी का भान रहता है तो या फिर हम अच्छे एक्शन करते हैं या बुरे करते हैं, लेकिन हमें ये दोनों का ही त्याग करना है। मुझे त्याग करना है वेस्ट और And सिंफुल बुरे कर्मों का त्याग। perform elevated actions. और हमें सबसे बड़े बड़े एक्शन करने हैं, सबसे बड़े बड़े स्टेप लेने हैं। तो हमें इस बॉडी के भान का त्याग करना है, क्योंकि यही हमारे कर्म बंधन बनाता है। कि जो ये अगर कर्म बंधन बन जाते हैं तो इनसे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। Baba normally gives an example that just as when we were इसके लिए बाबा हमें एक एग्जाम्पल देते हैं, took this determined path, एक कहानी बताते हैं becoming a Brahmin, कि जब ये एक विचार आता है कि ये बहुत ही बड़ा विचार कि मुझे ब्राह्मण बनना है, ये हमें बहुत ही करेज देता है कि बस यही विचार कि मुझे ब्राह्मण बनना है, यही हमें बहुत ही शक्ति देता है। ये सब बहुत बड़ा विचार। so we were so much indulged in a natural way, walking, इस laughing at people, maybe लेकिन जब यही विचार
जब बुरे विचार आते हैं तो तब हम बुरे कर्म करते हैं anything that is कि लोगों connected के with बारे में बुरा बोलना, लोगों की हंसी उड़ाना, ये सब। without the renunciation of performing sinful actions, we cannot be तो the ones हमें who can perform pure actions. हम जब तक So, इन बुरे Baba says you need to कर्मों का त्याग नहीं करते तब तक हम अच्छे कर्म कर नहीं सकते। Roy David, how would he do all his actions? Similarly, इसके लिए you also हमें बाबा कहते हैं कि अगर हम उन लोगों जो बहुत ही बड़े ओहदे पर हैं, जो रॉयल लोग हैं, जो राजाई लोग हैं, कि हम उनकी तरफ अगर देखें कि उनके कर्म कैसे रहते हैं, जो भी वो कर्म करते हैं वो सबसे सुपीरियर रहते हैं, तो हम अगर उनकी तरफ भी देखें कि मुझे भी अपने कर्म वैसे करने हैं क्योंकि मैं भी राजा बनने वाला हूँ। क्या मैं उनकी तरह बोलता हूँ? क्या मैं उनकी तरह खाता हूँ? क्या मेरे कर्म उनकी तरह हैं कि नहीं है? अगर मैं बुरे विचारों में रहता हूँ या फिर मैं अपना समय वेस्ट करता हूँ तो उस समय मैं अच्छे कर्म नहीं करता। ये एक ही हो सकता है, जहाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। even immediately in this life also did not give us the experience of happiness and sorrow. अगर Not enable us to create that इस जन्म ब्राह्मण जन्म में भी अगर ये बुरे विचार चलते रहें या वेस्टफुल विचार चलते रहे तो हमें हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, ना ही हम परमात्मा की तरफ जुड़ पाएंगे। क्योंकि मेरे सिंफुल एक्शन, मेरे बुरे कर्म, मेरे साधारण कर्म मुझे नीचे खींचते जाएंगे, मुझे परमात्मा की तरफ नहीं जाने देंगे, मेरी बुद्धि को ऊपर की तरफ नहीं जाने देंगे, मुझे खींचते ही रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें इन साधारण वेस्टफुल बुरे कर्मों का भी त्याग करना है, क्यों? तभी तुम सबसे भाग्यवान बन सकोगी, पद्मापद भाग्यवान बन सकोगी। और चौथा कदम इस त्याग की मूर्त बनने के लिए है कि मुझे सिंफुल और वेस्टफुल एक्शंस का, कर्मों का पूर्ण ही त्याग करना है। so each and every second, each and every thought, each and every word, each and every actions is मेरे हर कदम, ये इस जीवन, ब्राह्मण जीवन में हर कदम, हर विचार, हर समय, हर सेकंड बहुत ही जरूरी है। ये तो हीरों से भी बहुत मूल्यवान है। for a few minutes that we just sat and talked here and there, it was just like that. हम कह देते हैं कि हमने तो 2 मिनट के लिए इधर उधर की बात की, 1 आधे मिनट की बात की थी, चलो कोई नहीं, ये हो जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये भी बहुत बुरा है, ये ऐसे बोलना, ऐसे विचार, ये छोटा बातें बहुत बुरी हैं। और उसके बाद बाबा हमें कहते हैं कि 5वां कदम है कि मुझे ग्रेट रिनंसिएट बनना है। Renunciation means those on the basis of knowledge and yoga, temporary मुझे actions that we do on the basis त्याग of की our मूर्त बनना है। 5वां कदम है कि मुझे त्याग की मूर्त बनना है। वो मैं बनूंगा कि इस ज्ञान के आधार पर, इस नॉलेज के आधार पर अपने आप को पूरा ही, मैं अपने त्याग की मूर्त तभी बन सकता हूँ जब मेरे ऑर्गन्स, जब मेरी इंद्रियां, मेरे संबंध सब शांत हो गए हैं, तभी मैं त्याग की मूर्त बन सकता हूँ, तभी ये पूर्ण परिवर्तन आ सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर तुम पद्मापद भाग्यवान बनना चाहते हो तो तुम्हें ये stop the carelessness, दृढ़ संकल्प और ये उत्साह होना चाहिए कि मुझे अपने पुराने संस्कारों का त्याग for comfort, करना है और मुझे इस जिंदगी में ये प्रेम, ये अच्छी चीज़ें लेके आनी है। something. And beautifully it said that the मैं एक cricketers, पढ़ रही थी कि especially those who are वहाँ पे लिखा हुआ था कि जो क्रिकेटर्स होते हैं और जो और at the games, गेम खेलते हैं, in order
उनके वो उनके लिए भी अगर जीतना वो चाहते हैं, अगर वो गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीतना चाहते हैं, तो मैं एक खिलाड़ी, एक सिस्टर खिलाड़ी, बहन खिलाड़ी के बारे में पढ़ रही थी जिन्होंने So she was sharing her experience that in order ये to एक मेडल get जीता था। the medal, वो एक सिल्वर मेडल जीतने के was that लिए 4 years of her efforts she put in, उनके क्या क्या करना पड़ा। उनको 4 साल best food, का she sacrificed के लिए सारा कुछ त्याग करना पड़ा। खाना, मूवीज़, फिल्में, हर मोबाइल फ़ोन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर चीज़ का त्याग करना पड़ा। क्योंकि उस बहन ने लिखा कि मैं अपने ध्यान इधर उधर नहीं जाना देना चाहती कि व्हाट्सएप में चला गया, फेसबुक में चला गया, ट्विटर में चला गया, ऐसा नहीं मैं करना चाहती थी। person has this determination of तो उसके पास ये दृढ़ संकल्प था कि मुझे इस जीतने के लिए इन सब चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। मुझे वो गोल्ड और सिल्वर मेडल के लिए इतना त्याग करना पड़ा। तो मैं जब बाबा की मुरली पढ़ रही थी तो मेरे को ये ध्यान आया कि मुझे कितना त्याग करना पड़ेगा, मुझे किन चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा कि ये मैं त्याग की मूर्त बन सकूं। नो जस्ट रिनंसिएशन, बस त्याग नहीं, मुझे तो त्याग की मूर्त बनना है। तो मुझे किन चीज़ों का, कितनी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। मुझे इतना सामर्थ्य होना चाहिए, मुझे इतना सामर्थ्य अपनाना है कि मैं इन बुरे विचारों का और साधारण चीज़ों का और इन छोटी छोटी चीज़ों का मुझे त्याग करना पड़ेगा। त्याग की मूर्त बनने के लिए मुझे इन सब चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं करता तो मैं त्याग की मूर्त नहीं बन सकता और सकती। तो बाबा ने एक बड़े ही अच्छे से कहा है कि वो त्याग की मूर्त वो है जिसके पास ये दृढ़ संकल्प है कि जिसके संबंध, विचार इन सब साधारण नहीं है वो, और वो सब चीज़ों से परे हैं। वो संसार को एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर दूर से ही देखते हैं। वही त्याग की मूर्त हैं जिनके पास ये नशा रहता है कि उनके पास ये नशा रहता है कि उनके पास ये नशा भी नहीं रहता कि मैंने कोई त्याग किया है। वही त्याग की मूर्त से बन सकते हैं जिनको ये पता भी नहीं, ये भान ही भूल जाता है कि मैंने कोई त्याग किया है। तो बाबा एक मुरली में भी कहते हैं कि उन्होंने एक अच्छी स्टोरी में बाबा कहते हैं कि एक पैरट था, वो अपने पिंजरे में बैठा, एक पेड़ की पेड़ पे बैठा था। पैरट सभी को कहता था कि मेरे को इस ब्रांच से मुक्त करो, इस ब्रांच से मुक्त करो। हर कोई उसको देखकर हंसता था कि तुम द ब्रांच इज नो होल्ड, तुम्हें पकड़ा है, ब्रांच ने तुम्हें नहीं, पर तुमने ब्रांच को पकड़ा है। हर कोई उसको देखकर हंस रहा था। लेकिन हम भी तो उसी की तरह हैं, हमने भी ये सोने की खुद को चेने बांध रखी हैं। किसी ने हमें नहीं पकड़ा, हम ही ने सभी चीज़ों को पकड़ा हुआ है। तो इन्हीं चीज़ों का त्याग छोड़ने पर ही तुम्हें परम भाग्य मिलेगा। अपने शरीर के भान से दूर, अपने से दूर, और इस त्याग की भान से भी दूर, इन सब चीज़ों को छोड़ देना, त्याग ही देना, ताकि हम इस शरीर से दूर हो सकें और किसी भी चीज़ से प्रभावित ना हो सके, कि कोई भी बंधन ना रहे, कोई भी संबंध में बंधन ना रहे। यही है जो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि ये त्याग की मूर्त क्या है। अगर हमें दानी बनना है, आगे हमें सर्वोत्तम दानी बनना है, तो मुझे
मुझे Baba अपने mentioned पापा here की तरह that बनना we पड़ेगा। have to pull souls to ourselves हमें अपनी and तरफ make आत्माओं them को नहीं exactly खींचना our है। name and form. हमें Many a अपने times नाम, Baba has हमें said अपनी क्वालिटीज़ की some of तरफ the लोगों को नहीं sisters, मिलता। तो बाबा कहते हैं कि they would say that कुछ-कुछ when I भाई और want बहन want anything, कहते हैं they कि they feel that I उनको कुछ नहीं have चाहिए, to लेकिन उनको ये take care of them. They feel भान that रहता I है am कि a मुझे very good person. इसका ध्यान They रखना feel that है, they are वो अच्छा spiritual पर्सन है, मुझे advisors. कोई अच्छा So Baba आदमी says चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। तो do not बाबा कहते हैं attract कि them to you. who are you Are attracting you to attracting them to and yourself or from? to Baba? Whom are you आप attracting? खुद से So प्रभावित होते हैं, आप लोगों को अपनी don't तरफ make प्रभावित other करते हैं souls जो also परमात्मा की attract तरफ to one in one प्रभावित form, करते हैं। but तो हमें ये भी make नहीं them करना है also कि और लोगों को अपनी towards तरफ Baba. खींचें, लेकिन उनको So परमात्मा की तरफ whatever लगाना it है, is, what ताकि वो ये Baba wants them to do, फील कर लें कि and उनके then the last परमात्मा step क्या चाहते हैं उनसे, परमात्मा का क्या है, of this परमात्मा connection क्या करना चाहते हैं। तो to हमें Baba परमात्मा की is तरफ लोगों को renunciation. लगाना है, अपनी तरफ नहीं Baba खींचना है। pursues a complete renunciation. So one तो is a बाबा कहते हैं renunciate, कि वो second is a great एक तो है renunciate, कि त्याग करना है, लेकिन एक त्याग की मूर्त बनना है। and तो these are the differences. लाइक पूरा ट्रांसपोर्ट कंप्लीट लाइक The first 100% one, त्याग की मूर्त बनना। तो परमात्मा कहते हैं still त्याग, fighting, सिंपल त्याग trying to give up that तो consciousness of the body, एक give up that लड़ाई ही है। renunciate, बस they लगे feel रहो कि as मुझे if अपने शरीर को त्याग करना है, ये करना they है। feel एक as if लड़ाई है, this साधारण is something त्याग where तो they यही have है। to be बस एक able to come out of एक those golden chains लड़ाई as लगी those रहती है कि मुझे इन feeling सुनहरी of जंजीरों से दूर हटना है, यहाँ से people to मुझे themselves, अपने आप को मुक्त करना being a है। great donor, a bestower of blessings. But when Baba talks about being a complete लेकिन renunciate, जब then परमात्मा Baba कहते हैं कि reminds us त्याग that की मूर्त Brahma बनना Baba है, being that state तो of perfection, बाबा हमें ब्रह्मा बाबा when का he became एक that उदाहरण Satvara, देते हैं कि ब्रह्मा बाबा त्याग की मूर्त बने। and तो in that वो he reminds कंप्लीट us वो three त्याग की steps. मूर्त बने, तो From हमें वो परमात्मा 3 to become कदम बताते हैं। एक तो ourselves. हमें विदेही बनना है, दूसरा हमें ये 5 बुरे कर्मों का त्याग करना है और कोई बुरा कर्म नहीं करना है। हमें इस Although देह being के the भान से मुक्त होना है, body, विदेही बनना है। constantly चाहे कि मैं इस शरीर में हूँ, चाहे मैं इस स्थूल soul शरीर में from हूँ, one लेकिन side मुझे ये भान रहे कि मैं विदेही हूँ, मैं इससे फिर भी दूर रहूँ और मैं परमात्मा को याद रखती रहूँ। दूसरा है कि मुझे ईगोलेस बनना है, कि मुझे कोई अहंकार ना रहे मेरे शब्दों में, मेरे कर्मों में। was to be voiceless in action. तीसरी चीज़ है कि मुझे ये पांचों विकारों का त्याग करना है। जब कोई So that is complete renunciate. वाइस ना रहे, Then Baba जब mentioned that कंप्लीट पवित्रता होगी, तो उसकी बात करते हैं बाबा। he becomes a great जब तुम्हारी पांचों इंद्रियां शांत हो जाएंगी, जब through the forehead, तुम्हारी पांचों इंद्रियां भी सभी को ब्लेसिंग्स देंगी, तुम अंदर से ब्लेसिंग अपने आप निकलेगी। spiritual drishti, as अब normal स- Baba mentioned, आध्यात्मिक दृष्टि one eye there is home, बनाओ अपनी बच्चों। is the kingdom. और बाबा कहते हैं So कि giving a signal towards that, then through the words, giving the clear परमात्मा अपने शब्दों से कहते हैं कि हमें पूरा ज्ञान देते हैं कि इस क्रिएशन का और क्रिएशन की रचना का, blessings, संसार की रचना का, becoming constantly
easy yogis and karma yogis. बाबा हमें ये आशीर्वाद भी देते हैं कि हम एक सहज योगी बने और एक कमल पुष्प की तरह फूलें और सभी को वरदान लुटाते जाएं और अपना भाग्य बनाते जाएं। हर कदम हमारा ये दिखाना है कि एक एग्जाम्पल शो करना है कि विकारों से दूर जिंदगी कैसे जीते हैं। वही एक कंप्लीट त्याग मूर्त का एग्जाम्पल परिभाषा है। हमें एक परिभाषा सेट करनी है त्याग मूर्त की। हमें लोगों को एक अच्छा अनुभव देना है, हमें लोगों को वरदान देने हैं और हमारा कोई भी कर्म इन्फ्लुएंस ना हो इन वाइसेस से, विकारों से कोई प्रभावित ना हो हमारे कर्म। हमें वरदानी मूर्त बनना है, लोगों को वरदान देने हैं और ये खुद में ये सम्मान रखना है कि मुझे ही परिवर्तन लाना है, मुझे ही जो साधारण जो वीक हैं उनको शक्तिशाली बनाना है, मुझे ही ये परिवर्तन करना है, मुझे ये एटमॉस्फेयर बहुत ही प्रभावशाली बनाना है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि मेरे में सारे गुण हों, मेरी हर एक कर्म में मेरे गुणों की खुशबू हो। मुझे लोगों के बुराइयां नहीं देखनी, मुझे लोगों की अच्छाइयाँ देखनी है। मुझे हर एक के गुणों को ही देखना है। बाबा हमें तीसरा साइन देते हैं कि त्यागी मूर्त बनने के लिए, तब वो है कि मुझे रिस्पॉन्सिबल बनना है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है हर एक एक्शन की। मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है एटमॉस्फेयर की। मुझे ये नहीं कहना कि ये मेरा नहीं, ये ऐसा नहीं, लेकिन मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि चेंज मेरे से ही आएगा, मैं ही अच्छा परिवर्तन लाऊंगा। मैं ही बाबा का बच्चा हूँ और मैं ही ये चेंज करूँगा। हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? जिनके पास कुछ वीकनेस ही है, मुझे उनको वरदान देने हैं, मुझे उनको साथ देना है ताकि वो भी शक्तिशाली बन सकें और वो भी अभ्यास करके अच्छा मार्ग पर चल सकें और अपने भाग्य को बढ़ा सकें। क्योंकि मुझे ये सम्मान रखना है कि ये मेरी फैमिली है, ये एक ट्री, ये एक वृक्ष की तरह है जिसमें ये वरदान, ये गुण एक फल की तरह हैं और मुझे ये अपने गुण जो कि मेरे फल की तरह हैं लोगों को देने हैं। मुझे खुद को पेट की तरह देखना है, मेरे गुण मेरे फलों की तरह जो कि मुझे लोगों को देने हैं। ये एक परमात्मा के द्वारा बताया हुआ एक साइन है रिनंसिएशन का, त्याग की मूर्त का। मुझे खुद की तरफ देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे करता हूँ ये चीज़ों को। मुझे दृढ़ संकल्प रखना है कि मुझे सर्विस करनी है और परमात्मा ने हमें ये समय दिया है कि हम वो सारे दृढ़ संकल्प के साथ ये यात्रा पूरी कर सकें, अपने आप को चेंज कर सकें। हमें अपने को देखना है, अपने अंदर जाना है, जो भी हमें कमियां हैं ना उनको चेंज करना है। जो मेरी फाइनल मूर्त है, मुझे संसार को दिखानी है ताकि वरदानी मूर्त वो मुझे बनना है। वो जो भी कमियां मुझे पूरी करनी है और मुझे अपने ही कर्मों से अपने परम पिता परमात्मा का नाम रोशन करना है। कहते हैं नहीं कि सन शोज द फादर, बच्चा ही बाप को दिखाता है। तो मुझे वो जो भी मेरे में कमियां हैं वो मुझे कवर करके ख़त्म करके मुझे अपने संपूर्ण स्थिति
में समा जाना है, पहुंच जाना है, पा लेना है। Just as for Brahma Baba in the last 6 जब ब्रह्मा months, बाबा के जब दृष्टि देते थे तो लोगों तो दादी दादी को जब ब्रह्मा बाबा ने दृष्टि दी थी तो वो परम धाम में चले गए। तो जब ब्रह्म ट्रांस से वापिस आए तो ब्रह्मा बाबा ने पूछा तुमने क्या देखा। तो दादी जब उस समय छोटी थी उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ पे ब्रह्मा को देखा, लेकिन वो उनकी लाइट बहुत थी, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली से, आज से भी ज़्यादा। तो ब्रह्मा बाबा ने उसके बाद वो सुनने के बाद कि मैं अपनी उस स्थिति में अभी नहीं पहुंच पाया हूं, तो वो स्थिति में पहुंचने के लिए ब्रह्मा बाबा ने बहुत ही मेहनत करनी शुरू कर दी, अपने अभ्यास को बढ़ा दिया ताकि वो अपने उस again she went स्वरूप को पा सकें। and बहुत ही she went to उन्होंने कार्य किया again उसके saw. लिए। She came back and then she said, still a little bit sister. उसके बाद जब दादी ट्रांस में गई तो दादी ने देखा कि ब्रह्मा बाबा उस परम स्वरूप में अब समा गए हैं। अब ब्रह्मा बाबा उस स्थिति को पा गए हैं। वो ब्रह्मा बाबा कोई ऐसा Because Baba did not want to create. तो ब्रह्मा बाबा ने लेकिन फिर भी लोगों को ये एहसास नहीं दिया कि वो अपने परम स्वरूप को पा गए हैं, क्योंकि वो लोगों को अपनी तरफ नहीं खींचना चाहते, वो परमात्मा की तरफ ही लगाना चाहते थे। But she realized that as if और हमें भी उनकी तरफ देख के ब्रह्मा बाबा की तरफ देख के ये एक दृढ़ संकल्प करना है कि जो मेरे में भी वीकनेसेस हैं, जो मेरी भी ये पुरानी मूर्त है, मुझे भी इसका त्याग करके उस अपनी परम स्वरूप को प्राप्त करना है। उस परम स्वरूप जो मैं बनना चाहता हूँ, वरदानी मूर्त, त्यागी मूर्त बनना है। which is not allowing हम us ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का ये है कि वो हर एक बच्चे को वरदानी मूर्त और त्यागी मूर्त देखना चाहते हैं। उनको अपनी तरफ देखना चाहते हैं, परम पिता परमात्मा की तरह हमें भी बनना है। in benefiting others, we benefit ourselves also. बाबा चाहते हैं कि बाबा का ये विचार है, बाबा चाहते हैं कि हम बच्चे बाबा की ही मूर्त बन जाएं। जब लोग हमें देखें तो वो परमात्मा का अनुभव करें हम में। जब बाबा कहते हैं कि तुम्हें त्यागी मूर्त बनना है, तो बाबा कहते हैं कि मुझे ये देह भान को छोड़ना है, मैं और मेरे के भान को छोड़ना है। लोग ये अट्रैक्शन जो हम है हमारा अपने शरीर से और शरीर के संबंधों से, उसका त्याग करना है। हमें हमारे ये जो कर्म हैं, जो वेस्टफुल हैं, जो बुरे कर्म हैं, जो कि हमें परमात्मा की तरफ और ऊंचाइयों की तरफ नहीं जाने देते, उनका त्याग करना है। तभी हम त्याग की मूर्त बन सकेंगे। वही एक वो त्याग की मूर्त की तरफ जाना ही हमारा संकल्प होना चाहिए। बाबा के ज्ञान की गहराई तो बहुत है। हम ब्रह्मा बाबा ने स्थूल भी त्याग किया, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने स्थूल से ज़्यादा बहुत ही जो अस्थूल इनकॉर्पोरियल त्याग किया, वो बहुत ही बड़े थे। तो हमें सेक्रीफाइस तो करना है, हाँ, हमें त्याग तो करना है फिज़िकल लेवल पे भी, लेकिन हमें उससे भी दूर जाना है। हमें इस फिज़िकल इमेज, इस स्थूल शरीर के संबंधों से दूर जाना है। मुझे देखना है कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी एटीट्यूड को बड़ा कर सकूं ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की तरह। एक बार
ब्रदर कहते थे कि एक तो एटीट्यूड होता है, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि एक तो त्याग होता है ना, वो तो सबसे पहले तो बहुत इजी हो जाता है कि हमें कुछ चीज़ों का त्याग करना है, लेकिन कुछ कुछ समय का त्याग तो सहज है, लेकिन सबसे बड़ा परम त्याग तो वो है कि जब जो लंबे समय तक चलता जाए, जब और उसके बाद ये एटीट्यूड है त्याग का, बस एक आधी चीज़ को छोड़ना नहीं, बस ये एटीट्यूड हो जाना कि मुझे बस छोड़ना, लाइक एनीथिंग दैट वी बिकम अवेयर ऑफ, लाइक है जो हमें कंटिन्यूस ये रखना है कि लगातार ये त्याग की मूर्त ही बन जाना है, त्याग की मूर्त बनना और कुछ समय त्याग करना, उसमें बहुत अंतर है। तो किसी भी तरफ आकर्षित ना होते हुए त्याग की मूर्त बनना है। ओम शांति। कोई भी प्रश्न हो, दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिस आपने हमें त्याग और सेक्रीफाइस और रिनंसिएशन का अंतर बताया और इस हमें यात्रा पे लेके गए, त्याग की मूर्त बनने की यात्रा पर लेके गए। एक प्रश्न है कि वैराग्य होने के लिए त्यागी बनना है। हाँ, दीदी कहती हैं कि बाबा कहते हैं कि वैराग्य और वैराग्य होना चाहिए। अगर तुम त्याग मूर्त बनना चाहते हो तो वैराग्य बहुत ही ज़रूरी है। तभी अगर तुम में वैराग्य नहीं है तो तुम दूसरी चीज़ों तरफ प्रभावित होते जाओगे, तो तुम त्याग नहीं कर पाओगे। तुम्हारी आँखें ये इन स्थूल चीज़ों की तरफ आकर्षित होंगी, तुम्हारी इंद्रियाँ इन स्थूल चीज़ों पर आकर्षित होंगी, तो वैराग्य जरूरी है त्याग की मूर्त बनने के लिए। हम दूसरा प्रश्न है कि हम काम पे कि प्रश्न है कि दीदी आप कुछ ऐसे कुछ बता सकते हैं, कुछ शब्द, कुछ लाइनें आप बता सकते हैं, क्योंकि मेरा वर्क स्केड्यूल बहुत ही बिजी है, तो कुछ एक आधी लाइन आप मुझे बता सकते हैं जो मैं रिमेंबर कर सकूं रिनंसिएशन और त्याग की मूर्त बनने के लिए। तो दीदी कहती हैं कि अगर मेरे पास ये भान है कि मैं त्याग करता हूँ, तो सो दीदी कहती हैं कि मुझे सबसे पहले ये भान रहना चाहिए कि मुझे रिनंसिएशन करनी है, मुझे अवेयरनेस होनी चाहिए मुझे क्या हो रहा है, मुझे फुली प्रेजेंस होके ये स्वमान अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे जितना मैं इस अवेयरनेस को बढ़ाऊँगा उतना ही मैं त्याग करने के लिए इजी हो पाऊँगा। तो दीदी कहती हैं कि अवेयरनेस बढ़ानी है, उससे रिनंसिएशन इजी हो जाएगी। कोई एक का प्रश्न है कि मुझे ये शरीर की सफरिंग से कैसे मैं दूर सकूं और विदेही बन सकूं। तो दीदी जवाब उत्तर देती हैं कि मुझे ये एक आधी बार की प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन मुझे बार बार ये अभ्यास करना है, बार बार का अभ्यास ही मुझे विदेही बना सकेगा, तभी ये इजी हो सकेगा, तभी ये सहज हो सकेगा। अदरवाइज़ ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम इस स्थूल शरीर से बहुत ही ज़्यादा बंधे हुए हैं। तो ये हमें अभ्यास करते जाना है ताकि हम उस जगह उस स्टेज तक पहुंच सकें।
तो एक आधे मिनट के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए नहीं, हमें लॉन्ग टाइम, हमें बहुत समय के लिए बॉडीलेस स्टेज में, अपनी विदेही स्टेज में समर्पित होना है, उसमें समा जाना है, उसमें रहना है। हमें पूरा दिन ये चेक करते रहना है कि मैं कितना समय विदेही रहता हूँ। तो जब हर एक घंटे म्यूज़िक चलता है तो मुझे ये चेक करना है कि मैं अगर 3 मिनट का सॉन्ग चलता है तो मेरे को चेक करना है कि मैं 1 मिनट के लिए बॉडी लेसन, 3 मिनट के बॉडी लेसन। तो मेरे को ये वो अवेयरनेस होना चाहिए और चेक करना चाहिए कि मैं किसी चीज़ से प्रभावित तो नहीं होता हूँ। तो मैं कितना समय रहता हूँ विदेही स्टेज में। तो दीदी कहती हैं कि जितना मैं समय इस स्थिति में रहूँगा उतना ही मेरे लिए सहज होता जाएगा, अदरवाइज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसके लिए अभ्यास चाहिए, अभ्यास ही बहुत ज़रूरी है। अभ्यास ही तुम्हें परफेक्ट बनाएगा, तुम्हें संपूर्ण बनाएगा। Without practice, it's not going to जब अंत समय आएगा तब हमारा शरीर हमें बहुत खींचेगा, जब हमें अपने कर्मों के फल को भोगना पड़ेगा। तो ये विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। एक और क्वेश्चन है वर्किंग प्रोफेशनल से, हम कैसे There's a last question, a very डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये मेरी इच्छा है या फिर ये मेरा वर्क से रिलेटेड कोई गोल है। worthwhile. तो So how to distinguish that is it really my desire दीदी उत्तर or देती is it हैं my just goal which I have to work कि means the locking जो इच्छा है काम करने की well, वो तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी फैमिली है, हमें उसकी केयर करनी है। तो काम से रिलेटेड गोल तो होना चाहिए, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर को देखना है। दैट्स अ गोल ऑफ माई लाइफ। सो मेरे को अपना काम करना है एक्यूरेटली। लेकिन जब मैं वो इच्छा से प्रभावित होकर काम करता हूँ कि मेरे को और चाहिए, मेरे को और चाहिए, वो हमारे दिमाग को, वो हमारे मन को बहुत प्रभावित करती है, वो ऊपर नीचे करती है। इच्छा बुरी है, इच्छा मात्रम विद्यम। And there's this last question, एक interesting one, एक is about Christ said that he that एक और क्वेश्चन है कि हम परमात्मा को पाने के लिए हमें कुछ खोना ही पड़ता है, कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। तो दीदी क्या ये ज़रूरी है? दीदी कहती हैं ब्रह्मा बाबा ने अपना तन मन धन दिया है। बाबा कहते हैं तुम्हें अपनी बॉडी नहीं देनी है, लेकिन बॉडी का भान का तुम्हें त्याग करना है। यही है जो हमें गिव अप करना है, तन मन धन ये गिव अप करना है। तो दीदी कहते हैं कि जो सबसे कड़क है वो है कि मेरी बॉडी कॉन्शियसनेस, कि मेरा देहभान, कि मैं हूँ, ईगो, अहंकार। तो बार बार ये सोचना कि मैं मेरा, तो ये बहुत अड़चने पैदा करता है। तो अगर मुझे आध्यात्मिक रास्ते के मार्ग पर चलना है तो मुझे ये इन सब चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। और अब हम दीदी से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप हमें मेडिटेशन हम की जर्नी पर लेकर जाएं। on renunciation, and I would request all of you all to be around दीदी after the अब मैं meditation याद की यात्रा पर to लेकर announce जाएंगे। So over to Didi for a meditation. शांत होकर बैठ जाएं, अपने मन को शांत करें। भृकुटी में बैठी हुई आत्मा पर ध्यान दें and focus on the sparkle on your forehead.
इस शरीर के भान से न्यारी होकर, इस शरीर के भान से और इंद्रियों से भान से completely न्यारी detach होकर yourself from this अपने physical self. अंदर लाइटनेस को अनुभव करें Feel the lightness in you. और अपने मन के विचारों की शक्ति से, अपनी बुद्धि की And with शक्ति the power से of your thoughts, हम इस याद की the power of यात्रा your पर mind, चलेंगे। let us go on this journey towards our home, अब हम अपनी याद की यात्रा परम धाम की ओर चलेंगे। the divine world, अपनी बुद्धि की आँख से अपने आप को with एक your mind's चमकता eye. हुआ सितारा देखें। Visualize yourself मैं एक बहुत ही न्यारा और as a प्यारा beautiful चमकता हुआ तारे की तरह एक सितारा परम पिता परमात्मा near Shiv Baba, को विजुलाइज को देखता हूँ। the sea, और जब मैं ध्यान देता हूँ, जब मैं अपनी बुद्धि as I focus उस my परम पिता attention परमात्मा में लगाता हूँ, on the supreme light, मैं परम पिता परमात्मा शिव की लाइट को खुद पर I आने allow देता Baba's हूँ। light and might अनुभव करता हूँ कि परम पिता परमात्मा की लाइट मुझ पर वर्ष रही है। मैं अपने को चार्ज कर रहा हूँ परम पिता परमात्मा की शक्ति से। I recharge myself मैं अपने आप को पूर्ण शांत अनुभव करता हूँ। I feel completely relaxed, recharging, मैं अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करता हूँ। We have lost Usha Devi, so I'll just in the meantime do the last bit. I'll just share my screen and do the future आप announcements. अभी If you just bear with me a आंखें moment. खोल लो और आप स्क्रीन पर देखोगे तो अगली हमारी क्लास होगी शनिवार 5 दिसंबर को, सैक्रिफाइस
एंड रिनंसिएशन and we'll be churning पे। and doing a few exercises just for 1 hour on Saturday. ये that थी is हमारी क्लास सेक्रीफाइस और रिनंसिएशन पे, अगली त्याग पे। अगली हमारी क्लास होगी 13 दिसंबर को एक्सेप्टेंस पे। After a fortnight again we meet for another value, that is acceptance, which is on Sunday जूम 15 का December, लिंक same और time. यूट्यूब का लिंक Zoom ID is आपकी mentioned. You can स्क्रीन also पर Google है। it if you want. It will be इसका circulated कोई on पासवर्ड नहीं रहेगा। 9808-7710, and it will be without a आप password. हमें And for यूट्यूब people who पर have इस missed, लिंक who are पर not देख able to सकते join हैं। for the live session अगर today, आपको please feel और free इन्फॉर्मेशन to चाहिए log in वैल्यूज़ at पे, तो आप हमारी omshanti.tk/values. वेबसाइट विहासा इंडिया And for more such information, or values, www.vihasa.in पर information, लॉगिन कर सकते हैं, www.vihasa.in. या फिर So हमारी this वेबसाइट Vikas is the name of our website, www.vancouver.brahmakumaris.ca पर लॉगिन कर सकते हैं। www.brahmakumaris.ca, and you can reach out to us through email and अगर WhatsApp. आपको Email और is मदद चाहिए तो आप हमको vihasa@gmail.com, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं the WhatsApp if you इस need नंबर anything पर। related to these programs. You can feel free to आप WhatsApp सभी or का email on the same धन्यवाद number. और आपको शुभ रात्रि। So thank you so much, all of you all, थैंक and यू। ओम wish you शांति। a good night in India and good evening in other parts, and maybe good morning and good afternoon in different time zones.